صلی علی رسول الکریم عاقبۃ للمتقین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میرے تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ، اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہم تمام بہنیں یہاں پر جڑی ہوئی ہیں ان کلاسز میں، جہاں پر ہم اللہ کے کلام پاک کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے یہ دعا کرتے چلیں کہ اللہ ہم سب کو یوں ہی ان کلاسز سے جوڑے رکھے ہمیشہ کے لیے، اور ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، صحت اور عافیت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے، آج کا جو سیشن ہے ہمارا تفسیر کا، جو کنٹینیو ہو رہا ہے تفسیر کا سیشن، سورۃ الانعام ہم تقریباً 14 رکوع کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ 15 کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے تلاوت کرتے ہوئے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ لاسٹ رکوع میں ہم نے کوشش کری تھی دیکھنے کی کہ جس کھانے پر، آپ سب کو یاد ہوگا کل ہم نے کیا سنا تھا، جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے وہ کھانا ہم سب کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور جس کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ کھانا ہمارے لیے درست ہے، جائز ہے۔ تو یہی ہم لاسٹ آخر میں کیے تھے کہ اللہ خوب جانتا ہے کون کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، خوب جانکاری رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ رک گئے تھے کل۔ انشاءاللہ آج ہم 121 کو شروع کرتے ہیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا وہ شخص جو مردہ، یہاں پر کیا میتن، کیا وہ شخص، کیونکہ دیکھیں یہاں پر سوال کیا گیا ہے ومن، تو یہاں پر کیا وہ جو تھا مردہ، میتا یعنی موت، مرنے سے مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا، یعنی تو زندہ کیا ہم نے اس کو۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا ہی نہیں ہے؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خوش نما بنا دیے گئے ہیں۔
یعنی یہاں پر مردہ کیا چیز ہے, کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, ویری امپورٹنٹ. اللہ کہتا ہے وہ مردہ, پھر میں نے اس کو زندگی بخشی, فَأَحْيَيْنَاهَا. مطلب مردہ کا مطلب ہے مردہ دل. انسان جب مرتا ہے وہ مردہ نہیں, سانس رک جاتی ہے وہ مردہ نہیں. یہاں پر ایک مردہ دل کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی ایمان اور ہدایت سے خالی ہو جانا. اصل میں مرنا کیا ہے ہمارا, یعنی دیکھیں ہم چاہے کتنی 100 سال 200 سال جئیں یا کتنے بھی سال جئیں, وہ جینا نہیں ہے, وہ ہماری زندگی کاؤنٹنگ نہیں ہے. ہماری ایگزیکٹلی ہمارا زندگی ہماری جو ہے وہ ہے ہمارے دل سے ہے. ہمارا دل میں ایمان ہے, ہمارے دل میں ہدایت ہے اللہ کی, تو پھر یہ دل ہمارا زندہ ہے. ورنہ ہم چاہے کتنا بھی جئیں, کتنے سال بھی جئیں, ہم مردہ ہیں اللہ کی نظر میں. تو یہ ویری امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے سمجھنے کے لیے. یہاں پر ہم جو زندگی یہاں پر سانسیں لے رہے ہیں, یہ زندگی اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں. اللہ کے نظر میں زندہ وہی ہے جو ایمان پر ہے اور اللہ کی ہدایتوں پر چل رہا ہے, وہی زندہ ہے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ جب میں مردہ اور پھر اس کو میں نے زندہ کر دیا, مطلب کیا, اس کو ایمان کی روشنی دے دی. پہلا مرا ہے مطلب کیا, دل مردہ ہے, نو ایمان, راہ ہدایت پر نہیں ہے وہ انسان. لیکن پھر اللہ کہتا ہے میں نے اس کو زندہ کیا, مطلب کیا, کہ میں نے اس شخص کو ایمان کی روشنی عطا کری اور قرآن اور سنت کی ہدایتیں دے دی اس کو میں نے, تو اس کا دل زندہ ہو گیا. اب سمجھ میں آیا زندہ اور مردہ یہ ریلیٹڈ ہماری زندگی اور موت سے نہیں ہے. ہم جو جی رہے ہیں اس سے اللہ کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے. اللہ کو سروکار ہے ہمارے ایمان سے, ہمارے زندہ دل سے, کہ ہمارا دل کیسا ہے, ایمان والا ہے کہ نہیں ہے, اللہ کی راہ ہدایت پر ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ انسان چلتا پھرتا بھی ہو تو مردہ ہی ہے اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا ہیں, ہم زندہ ہیں یا ہم مردہ ہیں. یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسی ہے. تو یہ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, دیکھیں یہاں پر, کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں نے اس کو نور عطا کیا. نور سے مراد کیا ہے, بصیرت, روشنی, جس کی وجہ سے انسان حق کو پہچانتا ہے اور باطل جو ہے اس سے بچنا چاہتا ہے. یعنی وہ آلویز کنارہ کرتا ہے برائی سے, باطل پرست سے کنارہ کرتا ہے. یہ ایمان, قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمیات کی روشنی میں ہے. یعنی ایمان کیسا, مجھے میرے ماں باپ نے کلمہ پڑھایا تھا وہ ایمان نہیں. ایمان کیسا ہونا چاہیے, ایمان علم کے بدولت ہونا چاہیے, with knowledge, that is true knowledge from Quran and حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو اگر ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہمارے جب ایمان کا فاؤنڈیشن قرآن اور حدیث ہے, تو پھر we have a true, کیا بولتے, ایمان. ہم پکے ایمان والے ہیں. ایمان والے ویسے تو سبھی اپنے آپ کو ایمان والے بولتے ہیں, دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سبھی اپنے کو ایمان والے بولتے ہیں, مسلمان بولتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو ایمان والا کہتا ہے, دس از امپورٹنٹ. جس نے with true knowledge اپنے علم کی بدولت قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی جی رہا ہو, تو that is the ایمان اللہ ڈھونڈ رہا ہے. ہمارے اندر اللہ ایسا ایمان ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ ایمان ہے. اندھیروں میں رہنے والا مطلب کیا, دوسرا انسان وہ ہے جو کفر اور شرک کیا, گمراہی میں مبتلا ہے, اس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوتا, اس لیے وہ کبھی بھی ظلم کے اندھیروں سے
नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास रोशनी, नूर है ही नहीं। तो फिर कैसे वो निकलेगा? मीन्स व्हाट इज दैट नूर? उसके पास इल्म ही नहीं है, कुरान और हदीसों का इल्म ही नहीं है, एंड दैट इज द नूर। अगर इस ये नूर उसके पास नहीं है, बल्कि किसी के पास नहीं है, तो वो अंधेरों से रोशनी की तरफ आ ही नहीं सकता। यानी एक टॉर्च, अंधेरे में अगर कोई इंसान होता है तो एक टॉर्च की जरूरत होती है, राइट? यहाँ पर टॉर्च हमारा नॉलेज है, हमारा इल्म है, एंड दैट ऑल्सो फ्रॉम कुरान एंड हदीस, सुन्ना। ये टॉर्च है हमारे लिए अंधेरे से रोशनी में आने के लिए। अदरवाइज एक अंधेरे में इंसान जो भटक रहा है वो कभी भी रोशनी की तरफ नहीं आ सकता, नो वे। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे एक शख्स देखिए अंधेरी रात में बगैर चिराग के सफर करे तो वो गिर पड़ेगा, कहीं लड़खड़ा जाएगा, मर खप जाएगा। एक मिसाल देती हूं मैं, अंधेरे में चल फिर रहा है, रोशनी है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं टकरा कर गिर पड़ेगा या कहीं खड्डे में गिर जाएगा, मर जाएगा, वो निकल ही नहीं पाएगा अंधेरे से। तो लेकिन दूसरा शख्स जो है वो चिराग लेकर रास्ते पर चल रहा है, यानी इल्म के रोशनी में वो रास्ते पर चल रहा है, तो ही विल नेवर फेल। वो कभी भी राह भटक नहीं सकता, ना ही वो रास्ता खो सकता है। तो हमारा क्या चिराग क्या होना चाहिए? इल्म, नॉलेज, एंड दैट ऑल्सो ट्रू नॉलेज ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अगर ये दो नॉलेज हमारे पास हैं तो फिर हम कभी भी राह से भटक नहीं सकते। तो यहाँ पर एक हदीस है हमारे लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना अल्लाह इस्लाम के लिए खोल देता है। ये बहुत ही मारूफ हदीस है। यानी अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जिस बंदे को चाहता है उसका दिल खोल देता है अल्लाह। किसके लिए? इस्लाम के लिए। इस्लाम इन द अदर सेंस नॉलेज, इल्म। इल्म देता है उस बंदे को अल्लाह ताला, उसका दिल खोलता है, मतलब ही एक्सेप्ट्स अ ट्रू नॉलेज। अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुछ भी मालूम होता है, ही एक्सेप्ट्स, ही और शी एक्सेप्ट, जो भी हकीकत है उसके सामने आती है वो एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करता है और अमल करता है। तो ये अल्लाह ताला की हदीस हमें बयान क्या करती है कि इंसान को क्या है, अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आने का काम किसका है? इस इल्म का है। यानी और एक हदीस मिलती है, मोमिन की मिसाल जिंदा की जैसी है। यानी एक मोमिन जो होता है ना वही जिंदा है, बाकी सब मुर्दा हैं। यानी काफिर जो होते हैं वो क्या है? उनकी मिसाल मुर्दा है, वो अल्लाह के सामने कुछ काउंटिंग नहीं है कि वो जिंदा है। जिंदा वही है जो अल्लाह के रजा के लिए जिंदगी बसर कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वही जिंदा है। बाकी सब मुर्दा हैं। जो अपने ख्वाहिशात पर शैतान की पैरवी करते हुए जो जिंदगी गुजारते हैं, जो अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, वो मुर्दा हैं अल्लाह के सामने। फिर हमें सोचना चाहिए हम कहाँ हैं, हम जिंदा हैं कि हम मुर्दा हैं। देखिए एवरी आया हमारे लिए है, हमारे खुद के लिए है। हमें खुद को सोचना चाहिए ये आयत को लगाकर, हम क्या हैं? वाकई में जिंदा हैं? सांसें ले रहे हैं तो जिंदा नहीं है हम, सांसों से जिंदगी नहीं है। यहाँ पर जो अल्लाह ताला बता रहा है उसकी वो हमें अप्लाई करना है और सोचना चाहिए कि हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं। तो ईमान इंसान के दिल को जिंदा कर देता है। ईमान अगर होता है किसी इंसान के अंदर तो वही जिंदा है। कुरान और सुन्नत का इल्म एक नूर है, यानी नूर, चिराग, रोशनी, टॉर्च जिसको कहा जा सकता है। ये है क्या? ये कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना। अगर ये दोनों इल्म नहीं है तो वी आर विदाउट लाइट, हम लोग अंधेरों में भटक रहे हैं। अगर ये दो चिराग हमारे पास नहीं है, हम अंधेरे में भटक रहे हैं।
तो जो लोग ईमान से दूर हैं वो अंधेरों में हैं, चाहे वो दुनियावी तौर पर कामयाबी नजर आते हो, यानी वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं ना, सुपर पावर भी क्यों ना, वो लोग दुनिया में बड़े टॉप पर क्यों ना वो लीडर, लेकिन अगर उनके पास ईमान नहीं है, वो ईमान से खाली है, तो फिर वो कभी नजर तो कामयाब आते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में वो लोग कामयाब नहीं हैं। आगे चलते हैं 120। वकज़ालिक जअलना फी कुल्ली क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा वमा यमकुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशउरून। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिम बना दिए ताकि वो वहां लोगों के साथ मक्र फरेब करें, हालांकि वो अपने आप ही के खिलाफ मक्र फरेब करते हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं है। यशउरून, वमा यशउरून, यानी अल्लाह ताला यहाँ पर कहता है हर बस्ती के बड़े बड़े मुजरिम, यानी एवरी लोकेलिटी दुनिया की अगर हम देखें तो बड़े बड़े मुजरिम घूमते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कहता है, हर शहर में कौम में क्या है, बड़े सरदार होते हैं, मालदार होते हैं या लीडर होते हैं, वो क्या है अक्सर क्या करते हैं, गुमराही को फैलाते हैं। ये हमारे माशरे की आज की बात लेकर चलो आप, कोई भी लीडर आपको अल्लाह तक पहुंचाता है, कोई भी मालदार आपको अल्लाह तक पहुंचा रहा है, कोई भी नहीं, सब गुमराह कर रहे हैं हमें, सब हमें दुनियादारी में लगा कर रखे हैं कि दुनिया दुनिया और सिर्फ दुनिया। तो ये यहाँ पर अल्लाह बता रहा है कि ये हम लोगों को गुमराह करते हैं, और वो अपनी इज्जत और ताकत के बलबूते पर, उसके गरूर पर हक को मानने से ये लोग इनकार करते हैं। यानी उनके लिए पावर सब कुछ है, ताकत कुव्वत सब कुछ है, किसने उनको ताकत दी, किस वजह से इन्हें ताकत मिली है, ये सोचने को उन्हें फुर्सत नहीं है। वो समझते हैं हर चीज हमारे पास है, ये ताकत, ये पावर, ये जो कुछ है ये हमारी है, हमारे पास है। और इसके घमंड में आकर ये लोग क्या करते हैं, लोगों के ऊपर क्या करते हैं, ये निगराह बने फिरते हैं, लोगों को राहों से भटकाते फिरते हैं, और सब पर क्या है, फौजदारी करते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं लोगों को, यानी जो माजूर जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर अपनी फौजदारी निभाते हैं ये लोग। तो वो क्या है, नबियां देखें, वो नबियों और नेक लोगों के खिलाफ साजिशें करते हैं। ये जितने भी माशरे के बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो जिनके हाथों में पावर है, इनको अच्छे लोग पसंद नहीं आते, इनको अल्लाह वाले लोग कभी भी नहीं पसंद आते, इनको सही राहों पर चलाने वाले लोग पसंद नहीं आते, तो इनके खिलाफ इनकी साजिश होती है। आज भी आप देख सकते हो ना, दुनिया में अगर कोई रास्ता भटका है और उसको रास्ता दिखाने वाला है तो वो इस्लाम है। अब जो भी इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, ये बेचारे, मैं बेचारे कहूंगी इनको, ये समझते हैं कि इस्लाम के जितने मुसलमान फॉलोअर्स हैं ये सभी उनके लिए खतरनाक हैं, जबकि इनको नहीं पता कि ये जो नजर आते हैं मुसलमान, वो सारे मुसलमान नहीं हैं, वो सारे इस्लाम पर नहीं चलते हैं, ये बेचारों को नहीं पता है। वो डरते हैं कि वो जानते हैं इस्लाम हक है, इस्लाम सच है, इस्लाम सच्चाई की राहों पर चलाता है लोगों को। तो उनकी खटिया खड़ी हो सकती है किनकी, जिनके हाथों में पावर दिया गया है। पावर किसने दिया इनके हाथों में, हम जैसे लोगों ने उनके हाथों में पावर दिया है। तो यहाँ पर यही बात है कि ये फिर इनके ऐसे लोगों के खिलाफ साजिशें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, हाँ, और आम लोगों को बहकाते हैं। आप ये मीडिया, फॉर एग्जाम्पल, ये मीडिया देख रहे हो आप आज, ये मीडिया क्या कर रही है, ये हम जैसों को, जो न्यूज रीडर्स हैं, जो लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको बहकाने का काम इन लीडर्स के तरफ से ये मीडिया करती है। ये मीडिया इनके चमचे हैं, यू नो तो ये लोग
उनके काम ये मीडिया करती है और हम जैसों को राहों से भटकाती है। तो ये साजिशें कौन करता है? ये मीडिया प्लस ये लीडर्स मिलकर करते हैं। ये मिली भगत होती है इनकी। तो ये हम सभी जानते हैं, ये किससे छुपा हुआ नहीं है ये माजरा। ये आज दुनिया में और रहती दुनिया तक यही चलने वाला है। क्या? जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस होने वाली है, बाकी सब कमजोर लोग हैं। तो असल नुकसान किसका है इसमें? अभी ये सुपर पावर जो भी है वो हमें, हम जैसे कमजोरों को चला रहे हैं आज। वो समझते हैं, खुश होते हैं कि ये तमाम जो कौम है उनके बस में है, उनके वश में है, उनका हम पर कंट्रोल है। लेकिन ये गलत है, ये लोग गलत हैं। ये लोग समझते हैं कि हमें चकमा दे रहे हैं ये लोग, लेकिन ये गलत है। इन्हें शऊर नहीं है, ये खुद को धोखा दे रहे हैं। ये जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं ये खुद को धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं वो अच्छा तो नहीं कर रहे हैं ना, वो बुराई कर रहे हैं। तो उसकी बुराई की तो पकड़ होनी ही होनी है, दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो होनी ही है। तो अल्लाह कहता है इनको शऊर नहीं है, ये समझते नहीं है बिल्कुल। ये खुद को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं। और अल्लाह यही कहते हैं कि ये बड़े होशियार लोग हैं, दे आर मोस्ट टैलेंटेड पीपल। लेकिन असल में वो अपनी बर्बादी की तैयारी कर रहे हैं। यानी धीरे 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 वो कहाँ जा रहे हैं? अपनी बर्बादी की ही ओर जा रहे हैं। क्यों? उनका काम है लोगों का भला करना, लोगों की भलाई करना, लोगों को सीधा रास्ता दिखाना। बिकॉज ये कमजोर माजूर लोग इनकी तरफ देखते हैं, कुछ भी होता है तो इन लीडर्स के तरफ देखते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन ये धोखा देते हैं। तो दैट मीन्स वो धोखा हमें नहीं देते, वो खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद के गड्ढे खोद रहे हैं ये लोग। तो इसके लिए हमें मुतमईन रहना है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो जैसा करते हैं वो भरेंगे, लेकिन हमें कैसा करना है ये हमें सोचना है। एक हदीस भी है इसके पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइश अंबियाओं पर आई, फिर इनके बाद सबसे बेहतरीन लोगों पर आई। समझ आई बात की? यानी जो दुनिया में जितना बेहतर होगा उतनी उस पर आजमाइश होगी। नहीं तो हम में से कहते फिरे, अल्लाह मैं नमाजा पढ़ती हूँ, मैं रोजे रखती हूँ, मैं हज्जा करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पर मुसीबत है, फिर भी मेरे पर मुसीबत है, अल्लाह मेरे पर मुसीबत डालता है। ये बात हम कहते हुए सुनते हैं। अरे इबादत करने से, अल्लाह की फर्मा बरदारी करने से, अल्लाह की इताअत गुजारी करने से हमारी आजमाइश कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा होगी। क्योंकि अल्लाह हमें हिला 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 कर आजमाना चाहता है। सीधे तौर पर अल्लाह जो जितना प्यारा होगा उसकी आजमाइश उतनी ज्यादा होगी, उतनी सख्त होगी। अगर बिलफर्ज आज आप हम पर और आप में से किसी पर अगर वाकई कोई आजमाइश चल रही है तो हमें सब्र करना चाहिए। क्यों? बिकॉज मे बी आई एम द चोजन, आई एम चोजन बाय अल्लाह सुब्हाना ताला कि मेरा इम्तिहान हो, और वो भी सख्त इम्तिहान हो। लेकिन अल्लाह से इतनी दुआ करनी, अल्लाह तेरी आजमाइश में पूरी उतरूं, अल्लाह मैं कामयाबी हासिल करूं तेरी आजमाइश को पूरा करते करते। तो हम उल्टा बात ना करें, आजमाइश को देखकर उल्टे बात ना करें अल्लाह की तरफ, बल्कि हमें खुश होना चाहिए। अगर आजमाइश है तो हमें उसे सब्र से, हमें उस आजमाइश में पूरा उतरना चाहिए। तो ये हमारे लिए है। और इस आयत में हमारे लिए पैगाम क्या है? हक की राह में सबसे ज्यादा मुखालिफत अक्सर ताकतवर और दुनिया परस्त लोग करते हैं। यानी अगर हक में कोई चल रहा है, हक पर कोई चल रहा है, उसकी मुखालिफत यानी अपोजिशन कौन होगा? ताकतवर होंगे लोग, हमारे मुआशरे के बड़े मालदार लोग होंगे, उन्हीं को हम पसंद नहीं आएंगे। समझ आई बात की? तो ये देखिए हमारे मुआशरे की बात, यानी मुखालिफत हो रही है आपकी, दैट मीन्स यू आर ऑन करेक्ट पाथ, ट्रू पाथ,
सही डगर पर चल रहे हैं अगर आपकी मुखालिफत हो रही है, लेकिन आप सबसे प्यारे हैं, सबको प्यारे हैं, तो सोचो कहीं गड़बड़ है, कहीं मस्का ये तमाम चीजें लग रही हैं, कहीं खुशामदी हो रही है, उसका उसका भी झूला झूला, उसका भी झूला झूला, यानी सबका झूला झूलाते चल रहे हैं हम लोग, मतलब नो अपोजिशन। दैट मीन्स खतरा, मोमिन के लिए खतरा है, बिकॉज अपोजिशन का आना ही अलामत है कि यू आर चोजन वन, आपको अल्लाह ने चुना है आजमाइश में खरा उतरने के लिए। तो जब कभी आपके सामने कोई आजमाइश आए, कोई फ्रेंड्स के तरफ से होने दो, कहीं अपने आपके रिलेटिव्स के तरफ से होने दो, कोई अपने रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, माँ बहने भाइयाँ, हर किसी से भी, किसी के तरफ से भी अपोजिशन आ सकते हैं, दुनिया का छोड़ो, मैं घरों की बात करती हूँ। आप अगर सही हैं, सही डगर पर चल रहे हैं, अल्लाह की राह पर चल रहे हैं, आपको मुखालिफत मिलनी ही मिलनी चाहिए, वरना यू आर ऑन रॉन्ग पार्ट, गलत तरीके पर चल रहे हो आप। खुशामदी करते हुए, सबको खुश करते हुए चलना, ये हमारा दीन का काम नहीं है। तो ये समझने की हमें जरूरत है। आगे चलते हैं। $124। وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, और जब उनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं कि हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हमें भी वही ना दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत कहाँ रखे, किसको दे। अन करीब मुजरिम लोगों पर अल्लाह के यहाँ जिल्लत और सख्त अजाब पड़ेगा इनके मक्र फरेब की वजह से। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर जो कुफार की बात हो रही है, यहाँ पर कुफार का मुतालबा, काफिर मुतालबा कर रहे हैं। क्या मुतालबा कर रहे हैं काफिर? वो सरदार कहते हैं, मक्का के जितने भी सरदार हैं, बड़े बड़े लोग, वो कह रहे हैं कि हम क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, हम क्यों माने नबी को इस, हाँ, अगर वाकई में वो रसूल हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में रसूल हैं, तो हमें भी वही दर्जा और मुआजिजात मिलने चाहिए। डिमांड, उनके जो लीडर्स थे मक्का के काफिर, उनका डिमांड सुने, वो कहते थे जो अगर वाकई में ये रसूल हैं अल्लाह के, हमें भी वही मिलना चाहिए जो रसूल को दिया गया है, नाउज बिल्लाह। ये इनका मुतालबा था अल्लाह से, तभी हम ईमान लाएंगे वरना नहीं लाएंगे। तो वही दर्जा और उनको मुआवजात चाहिए थे। यानी वो हसद, तकब्बुर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क्यों चुना गया, उनको ही कुरान क्यों दिया गया, जबकि वो क्या थे, एक सीधा साधा नॉर्मल इंसान थे। वो कोई मुआशरे के, कौम के सरदार नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, हम सभी जानते हैं, वो सीधे साधे थे बहुत। आ उनको, वो लोगों के चहेते जरूर थे, वो लोगों में पॉपुलर थे, मोस्ट पॉपुलर थे, वो अमानतदार थे, वो अमीन थे, सादिकुल अमीन, सच्चे थे, सब पहचानते थे, लेकिन ही वॉज नॉट लीडर। वो कौम के लीडर नहीं थे, सरदारों में से नहीं थे। तो इनको दिल में जलन कि इनको अल्लाह ने क्यों चुना, वाई, हम लोग क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, अगर वो वाकई में नबी है तो हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी वो सब मिलना चाहिए जो नबी को दिया गया है। यानी वो हसद करते थे, तकब्बुर करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम नहीं किया उन्होंने। तो अल्लाह का जवाब देखे क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं रिसालत देना, यानी कुरान जो दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
रिसालत देना सिर्फ अल्लाह का काम है, और वही बेहतर जानता है किसको देना और किसको नहीं देना, किसको चुनना चाहिए मुझे, किसको नहीं चुनना। मैं या हम इंसान नहीं कह सकते अपने रब को। क्या आप कहीं किसी मालिक के कंपनी में काम कर रहे हैं, आप मालिक को बोल सकते हो कंपनी में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बोल सकते हैं हम लीडर्स को बोल सकते हैं नहीं यहाँ इस देश में ऐसा होना है वैसा होना है, क्या वो सुनते हैं हमारी? तो फिर ये अल्लाह से डिमांड करते थे कि जो नबी को दिया गया वो हमें भी दो, तभी हम मानेंगे। तो इस तरह से ये लोग, फिर अल्लाह ने जवाब दिया कि मुझे किसको चुनना है, मुझे किसको क्या देना है, ये मेरी मर्जी, मैं दूंगा जिसको चाहे उसे मैं चूज करूंगा। ये कोई दुनियावी अहदा या ताकत नहीं है, बल्कि ये एक खास इंतखाब है। यानी ये जो नबूवत दी जाती है ये कोई दुनियावी ओहदा नहीं है, पीएम सीएम डीएम, हाँ हम जिसको चाहे बना दे। हाँ जाहिल को भी हमने पीएम बना के रखे, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये पीएम डीएम बनाना हमारे हाथों में है, लेकिन ये नबूवत का फरीजा पूरा करने के लिए अल्लाह जिसको चाहे, अल्लाह की मर्जी है उसी को चुनता है। तो ये अल्लाह के चुनने के बाद ही कोई नबी बनते हैं। तो अल्लाह यही बता रहा है यहाँ, और फिर मुजरिमों का अंजाम बता रहा है अल्लाह आखिर में कि ऐसे मगरूर और जिद्दी लोगों को कयामत के दिन अल्लाह ताला जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला करेगा और इनको सख्त अजाब से दो चार करेगा। वअज़ाबुन शदीदुम बिमा कानु यमकुरून, मकर यमकुरून, वो मकर धोखा जो लोगों को देते थे, ये अल्लाह ताला उनका अजाब उनको इस तरह से देगा। एक हदीस मिलती है इसी ज़िमन में 124 के लिए, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है इसे दीन की समझ अता करता है, बुखारी मुस्लिम। यानी हिदायत जो है और नुबुवत अल्लाह की है, वो अल्लाह की अता करता है। हिदायत देना या किसी को नबूवत देना ये अल्लाह का अता है, अल्लाह की अता है। ये किसी की ख्वाहिश पर या किसी के दावों से नहीं मिलती, किसी के मांगने से नहीं मिलती, ये अल्लाह की अता है, वो खुद अता करता है। तो नबूवत और रिसालत अल्लाह की अता है, कोई अपनी ख्वाहिश से इसे नहीं पा सकता। हसद और तकब्बुर इंसान को हक से रोकता है। जो भी इंसान हसद करता है, जो भी इंसान तकब्बुर करता है, जो कुछ करता है, उसको अल्लाह के हक से महरूम रखा जाता है, उसे कोई सीधा रास्ता कभी भी नजर नहीं आ सकता। अल्लाह जिसे चाहे उसे इज्जत देता है, और जिद्दी और मगरूर लोगों के लिए अल्लाह सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और अजाब देता है। आगे बढ़ते हैं 125। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दईकन हरजन कअन्नमा यसअदु फिस समाए कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिस्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। तो अल्लाह यहाँ फरमा रहा है, पर जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे वो गुमराह करना चाहता है इसका सीना अल्लाह तंग कर देता है, छोटा कर देता है और घुटन वाला कर देता है, कि दम घुट जाए ऐसा बना देता है, गोया वो आसमान पर चढ़ रहा हो। घुटन वाला यानी जो अल्लाह गुमराही के रास्ते पर चलता है वो ऐसा है जैसा कोई पहाड़ चढ़ रहा है। इट्स नॉट इजी ना, पहाड़ चढ़ना इजी नहीं है। दम भरते पहाड़ पर चढ़ना, सांस फूलना तो मुश्किल होती है ना। तो अल्लाह यही कहता है कि अल्लाह तंग करता है इनका सीना, तब जाकर इनको मुश्किल पेश आती है। तो मिसाल बताई अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के रास्तों पर चलने वाले कैसे हैं और अल्लाह गुमराही के रास्ते पर चलने वालों का क्या हाल होता है। इस तरह अल्लाह इन लोगों पर नापाकी डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। यानी हिदायत पाने वाला शख्स कैसा है, जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो इसका दिल खोल देता है, यानी इसे इस्लाम आसान और सुकून देने वाला बनाता है।
یعنی آسانی سے اسلام پر چل سکے اور اسلام پر چلتے چلتے اس کو سکون مل سکے، ایسا بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ خوشی خوشی دین قبول کرتا ہے، یعنی ویری ایزی کہ وہ انسان خوشی خوشی دین کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں راحت محسوس کرتا ہے، یعنی دین پر چلنا اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے ایک دم۔ لیکن گمراہی میں چلنے والا کیسا ہے؟ وہ ایمان نہیں لانا چاہتا، نمبر ون، اس کا دل سخت ہوتا ہے، ایک دم مضبوط ہوتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اس دین کی باتیں بوجھ لگتی ہے ان کو، دین کی باتیں بتاؤ تو ان کا کیا ہے، سر پہ چڑھتا ہے، ہر چیز بوجھ بن جاتا ہے ان کے سر پر، یعنی دین کی باتیں سننی نہیں ہمیں بس۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بوجھ بنا دیتا ہے دین کو، جیسے وہ آسمان پر کہیں چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ناممکن ہے اور بہت سخت کام ہے، یعنی آسمان پر چڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تو ایسے ہی جو گمراہی میں چلتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے عذاب بنا دیتا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ملتی ہے، جب اللہ کسی بندے کا بھلا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے،